السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میں تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے پروگرام ذکر صحابیات میں۔ جہان من کی یہ مخصوص پیشکش ہے جو ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ محترمہ مسرت ناز صاحبہ تشریف فرما ہے جو آج ہمیں بتائیں گی حضرت ہند بنت عتبہ کے بارے میں۔ میں درخواست کرتی ہوں محترمہ مسرت ناز صاحبہ سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بہنوں سے حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کروں گی۔ ہند عرب کی ایک جرأت مند اور بلند حوصلہ خاتون تھی۔ باپ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور ماں کی طرف سے یہ ہے ہند بنت صفیہ بنت اسید بن حارثہ۔ ہند بڑی فہیم و ذی شعور خاتون تھی۔ وہ ایک خوددار اور باہمیت و غیرت مند صاحب رائے اور نہایت ذی فہم عورت تھی۔ ان کا پہلا نکاح فاکہہ بن مغیرہ مخزومی سے ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ ازدواجی تعلق قائم نہ رہ سکا تو دوسرا نکاح ابو سفیان بن حرب سے ہوا، جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ہند کا باپ عتبہ، شوہر ابو سفیان اور خود ہند اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت رکھتے تھے۔ ابو جہل اس گروہ کا قائد تھا۔ اس کی قیادت میں یہ لوگ مسلمانوں کو طرح طرح کے مصائب دیا کرتے تھے۔ جب ابو جہل میدان بدر میں مارا گیا تو مشرکین اور کفار کا گروہ ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہو گیا، اور بدر میں ہزیمت اٹھانے کے بعد ان کا جوش انتقام اور بھڑک اٹھا۔ 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ اسی جذبہ انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں لشکر کفار کے ساتھ ہند بھی شامل تھی، جو مسلمانوں کے خلاف سخت نفرت و عداوت کا جذبہ رکھتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر رجزیہ اشعار پڑھتی اور مخالفین اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حقارت و دشمنی کے جذبات پیدا کرتی رہتی۔ جنگ احد سے 1 سال پیشتر جنگ بدر میں اس کا باپ عتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس لیے اس کا جوش انتقام انتہائی تیز تھا۔ بالخصوص حضرت حمزہ سے نہایت دشمنی کا اظہار کرتی تھی، اور اس طاق میں تھی کہ موقع ملے تو حمزہ کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس کام کی تکمیل کے لیے اس کی نظر وحشی پر پڑی۔ وحشی ایک شخص جہیر بن مطعم کا غلام تھا۔ ہند نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اگر حمزہ کو قتل کر دے یا اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کو آزاد کرا دیا جائے گا۔ وحشی فن حربہ اندازی میں بہت تیز اور پوری مہارت رکھتا تھا۔ موقع کا منتظر رہا، جو ہی حضرت حمزہ اس کے داؤ میں آئے، اس نے حربہ پھینکا جو ان کی ناف میں پیوست ہو کر
जिस्म के दूसरी तरफ निकल गया। हजरत हमजा ने आगे बढ़कर वहशी पर तलवार का वार करना चाहा, मगर जख्म इतना कारी था कि कदम लड़खड़ा गए और वो चकराकर जमीन पर गिर पड़े। गिरते ही रूह और जिस्म का रिश्ता मुनक़ता हो गया। हिंद जो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ शदीद मुंतक़िमाना जज्बा रखती थी, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को जमीन पर गिरते देखकर खुशी से उछल पड़ी और उनकी लाश पर आ बैठी। उस मौका पर उसने इंतहाई संगदिली और कसावत क़ल्बी का मुजाहरा किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को मसला किया, यानी उसके नाक और कान काट दिए और उनका हार बनाकर गले में डाला। फिर उसी पर इक्तफा नहीं किया, उससे बढ़कर ये भी किया कि उनका पेट चीर कर कलेजा निकाला और जोश असबियत और फर्क गजब से कलेजा चबा डाला, मगर उसके हलक से नीचे न उतर सका तो मजबूरन उगल दिया। ये अलमिया इंतहाई दिलखराश और बदरजा निहायत अजियत रसा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा के साथ ये बहीमाना और वहशियाना सलूक किया गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े मुआविन और मददगार थे। निहायत जर्री और बहादुर थे, हर मौका पर आपका साथ देते थे। मुखालिफिन इस्लाम इनसे लर्जा रहते थे, क्योंकि हिमायत हक के हर मकाम पर वो पेश रहते थे। उनकी शहादत और फिर लाश के साथ इस किस्म का गैर इंसानी सलूक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई अजियतनाक था। वक्त गुजरता गया। शहादत हमजा यानी जंग ओहद से 5 साल बाद 8 हिजरी में फतह मक्का का वाक़या रूनुमा हुआ। मुसलमान फौजो फलाह और फतह और कामरानी के साथ शहर में दाखिल हुए। ये वक्त भी बड़ा अजीब मंजर पेश कर रहा था। कुफार मक्का या तो मक्का से भाग खड़े हुए थे या फिर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए थे। हिंद के दिल में भी इनकलाब और तगय्युर की एक पुरजोश लहर उठी और उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर डाल गई। यानी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की ऐसी सख्त तरीन दुश्मन खातून हिंद का दिल इस्लाम के नूर से जगमगा उठा। वो दूसरी औरतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, मगर इस हालत में कि औरतों के झुरमट में छुपी हुई थी और चेहरे पर नकाब डाल रखा था। मकसद ये था कि कोई पहचान न सके और अपने खिलाफ इस्लामी सरगर्मियों पर किसी के सामने इजहार नदामत न करना पड़े। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। बैत का वक्त आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निहायत दिलेरी से हम कलाम हुई। बोली, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे किन किन बातों का इकरार लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात का कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। बोली, ये शर्त आपने मर्दों पर तो आयद नहीं की, फिर भी हमें मंजूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोरी न करो। हिंद बोली, मैं कभी कभार अपने शौहर के माल से कुछ खर्च कर लिया करती हूँ, मालूम नहीं ये जायज है या नाजायज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को कत्ल ना करो। हिंद ने जवाबन कहा, हमने तो अपनी औलाद को बचपन से पाला था, लेकिन जब बड़े हुए तो आपने ही उन्हें बदर में कत्ल कर डाला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन निहायत वसी था। हिंद की गुज़श्ता तमाम हरकत और सरगर्मियां आपके सामने थी, मगर पेशानी पर गुस्से की कोई शिकन नमूदार नहीं हुई, जिसका नतीजा निकला कि हिंद सच्चे दिल से दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई और बगैर किसी झिझक और खौफ व मलामत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व हक्कानियत का ऐलान किया। वो उसी मजलिस में बेसाख्ता पुकार उठी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले कोई शख्स आपसे ज्यादा मेरे नजदीक काबिल नफरत और लायक अदावत न था।
मगर आज के बाद कोई शख्स मुझे आपसे ज्यादा महबूब नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत के बाद हजरत हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हा घर पहुंची तो यकसर बदल चुकी थी और इस्लाम ने उनके अंदाज हयात में एक अजीम इनकलाब पैदा कर दिया था। घर जाते ही बुतों को तोड़ दिया और कहा कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तक तुम्हारी वजह से हम गुमराही की अमीक गहराई में घिरे रहे। निहायत बुलंद बहादुर खातून थी, इस्लाम के खिलाफ बाकायदा जंगों में खड़ी होती थी। कबूल इस्लाम के बाद भी बहादुरी की इस रिवायत को पूरे एहतमाम से इस तरह कायम कर रखा था कि अब वो इस्लाम की हिमायत और कुफ्र की मुखालफत में सरगर्म थी। उसकी एक मिसाल ये है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत या हजरत उमर फारूक के इब्तदाई जमाना खिलाफत में इलाका शाम की मशहूर लड़ाई जंग यरमूक लड़ी गई तो हजरत हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हा उसमें शामिल थी और रिज्जिया अशार पढ़कर मुसलमानों में जज्बे जोश पैदा करती थी। उनके शौहर हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस जंग में शरीक थे। हिंद बहुत बड़ी शायरा, निहायत फैयाज और लोगों की मददगार थी। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तैयारी कर ली तो हिंद उनके पास आई और कहा, ऐ दुख्तर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने बाप के पास मदीने जा रही हो, अगर कुछ सामान सफर और ज़ादे राह की जरूरत है तो बताओ, मैं मुहैया कर दूंगी। इससे अंदाजा ये हुआ कि हालत कुफ्र में और इस्लाम से खुली दुश्मनी के बावजूद उनमें रवादारी और हमदर्दी का जज्बा भी था। हजरत हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ। ये उसी दिन फौत हुई थी जिस दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वफात पाई। उनकी औलाद से हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम खुसूसियत से काबिल जिक्र है। अल्लाह ताला इनके तमाम तर गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह ताला इनकी कोताहियों की पर्दापोशी करे और अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला वरफा मकाम अता करे और इनकी जिंदगी से हम सबों को सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुसरत नाज साहबा, आपने बहुत खूबसूरती के साथ तफसील से हजरत हिंद बिन्त अतबा की जिंदगी के बारे में बताया हम सबको। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।